virtual sessions, and we done with the entire portion as such, revision as such. But सबसे basic चीज जो है वो है writings practice, because for this long 2 years, though you had a lot of assignments and stuff like that where you have to write, but when compared to offline or that regular, normal college or schools, writing was a different ball game, and in this new normal, writing is little lagging behind. So the first concern, which is the primary concern of me, and so is your teacher, is about your writing. So now what you can do, start from tomorrow itself, as of you are preparing for your examination by tomorrow. First thing you do is that check out what time you spent for the entire paper. For example, like what I ask all my students, including you, is that we should not consider ever the examination is of 3 hours. The moment we say ये 3 घंटे का paper है, you think it is all 3 hours for writing on a subconscious level. It should not be. अपना ये 3 घंटे का paper है, उसमें there is a process of reading, and you don't read only. You read, you assimilate, and you interpret, because that's how reading all goes with. You read a passage, you assimilate that passage, what actually it's all about, and then you interpret that passage according to what the questions are asked for. And in the entire 3 hours, your reading time, your assimilation time, your interpretation time is around 45 to 50 minutes. So आप ध्यान रखिएगा, your paper, actual paper, all writing is 2 hours 10 minutes or so. Now, when you say 2 hours 10 minutes, fine. That means I'll get all 2 hours 10 minutes of writing. Again, no. There is a moment when you finish with one question. For example, question 1. हम लोग paper pattern करेंगे. The moment you're done with question 1, you don't simply shift to your paper question number 2 and you start writing your answers. No. There is a movement. We call that as a breathing movement. Exercise करते हैं तो you keep your equipments down, and there's a breathing movement. That movement is also there in your paper. So when you're done with question number 1, you don't shift immediately to question number 2. There is a time when you go from question 1 to question 2. In the sense, whatever you have absorbed, interpreted so far for question 1, you delete that part and you start absorbing what is question 2. ये भी एक process होता है. And so that's the reason writing overall is not of again 2 hours 10 minutes. उसी को भी हम cut short कर देते हैं. So it becomes around 7, 8 or maximum 10 minutes in a given time. So eventually you write only for 2 hours. Now, when you write for 2 hours, every question, every element is, we should give a specific time. अभी आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सर ये टाइम हो गया. फॉर एग्जांपल एक राइटिंग स्किल है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4A, we have 4 elements in writing skills, sub questions A, B, C, D. So when you think about question number 4A, we have virtual messages, we have SOP or group discussion. Now it should be around 10 to 12 minutes of writing. So आप बोलोगे, sir, how I should count? Now that counting is done today, and so by tomorrow even. तो मैं बताता हूँ कैसे. For example, today when you think about writing SOP, या virtual messages, या group discussion, the moment you're starting to write question पढ़ा आपने, the moment you're about to write, check the time. So it is 12 past 17. So अपने answer जो भी long exercise book है, जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, वहाँ पे 12:17. So 12:17 लिखा, and you write as whatever you want to express. You write taking your own time and write complete whatever you feel this is the complete. Do that, and after you are done with everything, now you say this is all done. अभी मुझे कुछ नहीं लिखना है about this particular question. Then you see your time. So it will be around 12 past 17 को शुरू किया तो 12 past 28, 12 past 29, 32, whatever is the time you spend. Obviously उसमें और एक चीज ये है कि in your place, जो अभी आप घर पे हो, you have more at ease, mental level पे आप ease feel कर रहे हो. So but obviously you will not have that kind of thing what happens in the examination center. जो आपके कॉलेज में आप एग्जाम दोगे, वही एग्जाम बोर्ड का एग्जाम होगा,
that same mindset will not be tomorrow when you will be appearing for your college exams. तो कहीं ना कहीं subconsciously आपको ये पता है ये final exam नहीं है, so you will be at little at ease in the sense. और इसीलिए आप examination में, if for example today you sit down and you write group discussion entire answer in around say 20 minutes. So don't assume that I will be spending that same 20 minutes in my examination, because obviously आप जब बोर्ड के पेपर में अपेयर करोगे तो आपका माइंडसेट अलग होगा. It is the difference when you practice and when you play. When you practice, obviously you don't put that same energy, you don't throw everything, you just keep something with yourself. And when you go for the match, that could be a final match of cricket or football or anything, you throw everything. And that is what I say, when you go for board exams, you throw everything, so all your energy will be pursuing one element of writing. तो वहां पे ना ये same 20 minutes का content आप around 15, 16, 17 minutes तक complete करोगे. तो आप जब भी अभी कुछ practice करोगे, sorry, I have a severe bad throat. आप जब भी कुछ writing practice करोगे, you should count your time. Just give me a minute. Thank you. You should count your time. Obviously, घर पे मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम सेंटर में लिख रहा हूँ, बहुत फर्क है. लेकिन फिर भी we'll come to know the tentative time factor. तो you start doing that, including grammar as well. आप कहोगे ग्रामर के लिए क्या प्रैक्टिस करना है, तो you should see it's a collaborative effort. आप एक एग्जाम दे रहे हो 12th स्टैंडर्ड का, you're preparing for 12th, but your family is also preparing for you. ये ध्यान रखिएगा कि आपकी फैमिली भी उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है. तो अभी ग्रामर क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये एक्टिव पैसिव, चेंज द डिग्री, व्हाटएवर द ग्रामर क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस कॉलेज. अभी थ्रू माय 11th and 12th आई हैव रियलाइज्ड कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मुझे इतना इश्यू नहीं जितना एक्टिव पैसिव में. बिकॉज आपने जो 2 एग्जाम्स दिए हैं आपके प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड, कहीं ना कहीं पता चला होगा कि इन टर्म्स ऑफ क्लॉजेस, दो क्लॉजेस एग्जाम में इतने आते नहीं है. देयर इज नो स्टेटमेंट बाय बोर्ड कि आता नहीं है, बट फॉर लास्ट अराउंड द इयर्स ऑफ वर्क व्हाट आई हैव डन फॉर 12th, मैंने कभी क्लॉजेस एग्जाम में देखे नहीं, बहुत आया ही नहीं है मतलब. बट देन टू मुझे क्लॉजेस में इश्यू था. तो बट अभी as I said आने वाला नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि समीर सर ने बोला तो आने वाला नहीं. What you should do, at least practice 5 bunch of noun clause, 5 of adjectival clause and 5 of adverbial clause. 5 भी करोगे, it's all done. You do that same for everything: gerund, participle, infinitive, active passive, direct indirect, change the degree, transformation of sentences. हर एक का ऐसे एक kind of जो स्कूल लेवल पे हम लोग वर्कशीट्स प्रिपेयर करते थे, सिमिलरली यू शुड डू दैट. और ये आप मत कीजिए, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल स्पेंड टू मच ऑफ टाइम फॉर राइटिंग द क्वेश्चंस, एंड बाय द सेम टाइम बहुत बार हम राइटिंग द क्वेश्चंस के प्रोसेस में उसके आंसर्स भी देख लेते हैं. सो यू शुड नॉट डू दैट. इट इज योर फ्रेंड, योर फादर, योर मदर, योर गार्डियन, योर सिबलिंग्स यानी भाई बहन, उनसे ये क्वेश्चंस लिखा के लीजिए. Each question leave 2 lines. Each question leave 2 lines. And on a given day, for example, कल संडे था तो अगले संडे 26 जनवरी, you sit down and you complete that particular sheet of paper. Grammar practice में combination of 10 to 12 should be done. So example, अभी मैं बैठा हूँ तो I should do at least 12 grammar questions. फिर somebody should assess them. अभी देखो आप भी खुद असेस करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. You should always try to understand the error what you have done. अगर मैंने एक आंसर लिखा और जो मॉडल आंसर है उसमें कुछ फर्क है, that फर्क is something which is missing part and I should understand that thing. So it is not that you should go back to your college and show the answer paper. अभी बहुत से बच्चे सर कहते हैं मुझे कि we don't have, I'm from TP Bhatia, so we have science students, so they say we don't get time all 3 hours for
appearing for papers. तो मैं उनको कहता हूँ break it down. For example, if you say question number 1, overall question number 1 is of 16 marks. तो आज आपके पास 25 minutes है in a given schedule of yours. आपके पास आज 25 minutes है. So there is no need of thinking about क्या करूँ. Take one question, that is question number 1, and do the answers. If tomorrow you get 15 minutes, take one writing skill, for example, like जैसे मैंने कहा group discussion, and pen it down. When you have half an hour, so you can do summary writing and mind mapping. This way you just keep working on your English in terms of writing, which is a primary concern of all teachers, including me and the prolific teacher of your college as well. Then you should look into the writing factor with keen interest. और ये आज से आप शुरू कीजिए, पर ध्यान रखिएगा whenever you start writing anything in terms of writing, on top mention the time you started and also mention the time you finished your answer. So whatever is that time, it is not necessary to see the time and to think about, but for example, group discussion, I have penned down for 30 minutes. तो आपको पता चलेगा कि आपके 2 pages लिखे हैं, which I don't think so it is necessary because वो 4 marks का है. तो उसको भी एक time factor. When you run, you just cannot run for till eternity. You need to run in 100 meters, 200 meters. उसको एक line of demarcation होता है. So हर एक question का भी एक line of demarcation. For example, if I am writing SOP, I should make it into 4 paragraphs. Each paragraph, introductory paragraph 5 lines, second paragraph 10 lines, third paragraph 8 to 10 lines, and last paragraph is conclusion 5 lines या 3 lines. So overall, if you count, it goes with 30 lines. और बोर्ड एग्जाम्स में आपका जो पेपर होता है उसका लेंथ और कॉलेज का पेपर इज नॉट द सेम. इट्स अ बिग पेपर कॉल्ड आंसर बुक व्हिच इज अ बाइंडेड वन. तो उसका एक पेज है ना, आपके लॉन्ग एक्सरसाइज का पेज एंड हाफ हो सकता है, उससे भी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पेज एंड हाफ. सो इफ आई एम राइटिंग अ पेज एंड हाफ in my long exercise book, assume करो कि ये बोर्ड एग्जाम में 1 पेज हो गया. That is, I suppose, enough, because too much of writing will take away the time. We have to see that we should have extra time. Extra matlab around 12 minutes to go through each and every answer of what we have penned down and to look into. I will not say you change your answer, you modify your answer, you rectify your answer, but फिर भी हमारे पास 12 मिनट का समय होना चाहिए where we can run through the answers. So उसमें भी एक सबसे पहले मैं चेतावनी आपको दे दूं, when you run through your answers, don't ever think about looking into the grammar answers. Whenever you are appearing for grammar answers, board exams हो या कल का आपका college exam, grammar answer के लिखते वक्त एक extra minute लो. When you are done with the answer, this is the optimum right answer. फिर लिखो, फिर उसको देखो मत, because at times what happens, जो मेरा experience है, when you pen down some answers in terms of the grammar criteria, हम उसको वापस देखते हैं ना कुछ देर के बाद, एक सबकॉन्शियसली लगता है ये गलत आंसर है, you change it. और ये मैं तो अभी मॉडरेटर हूँ बहुत साल से, पर जब मैं ये पेपर इवैल्यूएट करता था, पेपर एज एन एग्जामिनर चेक करता था, I would come across this particular thing that many a times student will write a proper appropriate answer the very first attempt, और उसको रीचेक करते उसको लगता है ये गलत है और वो कुछ गलत कर देता था. That was what I have come across. So I asked him to spend extra time, पर ग्रामर आंसर लिखा फिर उसको चेक मत करो. और बाकी के आंसर्स को भी चेक नहीं करना है, रीराइट नहीं करता है, उसको कुछ मॉडिफाई करना है. वो क्या करना है, तो आपके आंसर्स लिखोगे तब आप कुछ नहीं करना, बस लिखते रहिए आंसर. The moment you are done with the entire paper, when you come back to read your answers, take pencil in your hand. And for example, आप बोलोगे एक्टिविटी है तो उसमें आंसर्स भी आएंगे क्या, तो ऑब्वियसली everything will be not of activity. It is absolutely not. हम पूरे एक्टिविटी के बेसिस पे सारे एक्टिविटीज नहीं होंगे. आपके एक्टिविटी का जो एरिया होगा वो जनरली कुछ 18 मार्क्स के एवरेज आपके एक्टिविटीज होंगे. शॉर्ट आंसर्स कुछ 22 या 28, 36 का रेंज होगा, और
जो लॉन्ग आंसर्स होंगे, जो राइटिंग स्किल्स है वो होंगी. सो यू कैनॉट कंसिडर एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, बट ऑब्वियसली एक्टिविटी होगा as well long exercise or the long or short answers. So when you consider activities are little time consuming इसलिए हो सकता है because you have to draw certain things जो question paper में दिया होता है, flow chart or you know pie chart or whatever the activity is. Even sometimes boxes are done. So you have to do as it is. तो उसके लिए आपको time लगेगा. लेकिन आप जब लिखोगे आंसर्स, पूरे लिखने के बाद यूज पेंसिल टू अंडरलाइन एवरीथिंग व्हाट यू फील लाइक डिफिकल्ट, डिस्टिंक्ट, यूनिक, स्पेशल, अलग. जो भी आपको एग्जामिनर को बताना है कि भाई ये डिफिकल्ट है और ये मैंने सही लिखा है. फॉर एग्जांपल स्पेलिंग ऑफ ओनोमेटोपोइया. 1000 students, if you ask, 99% of them they spell it properly, but they spell it wrong, but they pronounce it properly. इसके लिए ओनोमेटोपोइया ये स्पेलिंग बहुत से बच्चे कुछ एरर करते हैं, तो इसके लिए आपको एग्जाम में जाने के पहले या आज भी उसको बस बाय हार्ट करना है. ONOMATOPOEIA. So there is only one A, that is MA. ONOMATOPOEIA. So when I do this maybe 5 times, I'm done. के M के साथ A आता है, so it is ONOMATOPOEIA. And if you say this is what the correct thing is, underline that thing. Example, एक word है determination. एक आंसर में आपने कहीं लिखा है, सही लिखा है, भले determination को इतना high profile adjectival word ना हो, then do you just make it underline, because examiner will be happy to see you have underlined these words. Happy reason why? Because it will help him or her to scan the answers. Examiner को आपके सारे आंसर को थ्रो मत कीजिए, just look the entire answer. Give him clue कि भाई ये देखो और आप आगे चलो. So what underlined words will be giving him moment to scan your answers. और इसीलिए अंडरलाइन उसी को करना है जो डिफिकल्ट है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, स्पेशल है, अलग है, लेकिन करेक्ट भी है. फॉर एग्जांपल मैंने ओनोमेटोपोइया का स्पेलिंग भी गलत लिखा और उसको मैंने अंडरलाइन किया, दैट विल बी अ बूमरैंग फॉर यू. सो उसको ऐसा नहीं करना है. वी शुड अंडरलाइन एवरीथिंग व्हाट यू कंसीडर इज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इन ऑर्डर. तो ये आप कीजिएगा. और ये सब करने के लिए कल का आपका एग्जाम इज अ टेस्टिंग ग्राउंड. कल से आप उसको यूज कीजिएगा. Now coming back to questions के पेपर पैटर्न तो मैं डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले मैं और एक बात बताऊँ आपको. when you tomorrow you get your activity sheet या question paper, generally we start from question number 1 2 3 4 5 6 यानी 5. आप कल थोड़ा सा चेंज कीजिए. you start reading in a reverse order. question number 5 4 3 2 1. The reason लिखना हम लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में लिखना है, लेकिन रीडिंग करते वक्त 5 4 3 2 1. Why 5 4 3 2 1? हम जब क्वेश्चन 5 देखेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. वन थिंग इज दैट क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले इसलिए देखेंगे और आंसर्स एंड में लिखेंगे, तो हमारे पास ये 2 घंटा 22 मतलब 20-22 मिनट का जो टाइम फैक्टर है, या मैक्सिमम 2 घंटा 10-12 मिनट का जो टाइम फैक्टर है, उसमें भी गेट लॉट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस. जिसमें मैंने कहा था क्वेश्चन 1 लिखने के बाद you don't straight away jump to question number 2. You take some time, and in that some time you can think about question number 5, because question number 5 का एक प्रॉब्लम ये है कि it is all based on your memory. They will not give you any passages. तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मेमोरी बेस्ड. इसका मतलब हमको उस टॉपिक्स को जितने भी है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, टू सर्व विद लव, अराउंड द वर्ल्ड, साइन ऑफ होप, इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाना है. उसके कैरेक्टर्स को, उसके प्लॉट को, उसके थीमेटिक एलिमेंट्स को हमें पढ़ के जाना है अच्छी तरह से. इसीलिए वो थोड़ा मेमोरी बेस्ड है. तो मेमोरी बेस्ड में क्या होता है, यू हैव टू ब्रिंग इट दोस थिंग्स बैक ऑन द सरफेस. यानी हम उसको मेमोराइज करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में उसको रिट्राइव करना पड़ता है. वी हैव टू लुक इनटू एंड ब्रिंग इट बैक. तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए. तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना है, पर जब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कंप्लीट हो गया, 1A and B, क्वेश्चन नंबर 1A 12 मार्क्स, B 4 मार्क्स लिखा मैंने,
नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, तब उसके बीच में जो स्पेस है उसमें से क्वेश्चन 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, 5 का डी, कुछ भी प्रिपेयर करना है। ये ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूँ। सो उससे क्या होगा, यू गेट सम टाइम यू नो प्रीवियसली एट योर हैंड। can I ask you a question? Hello, बच्चा लोग, can you reply? Anybody can unmute and speak to me? Hello, hello, can anybody unmute and say ठीक है, आप लोग वड़ा पाव खाते हैं सब लोग, मतलब वड़ा पाव से वाकिफ है ना आप लोग? Sir, I'm giving unmute power to them also. They can speak. Ma'am, sir, better let them. Yes, yes. Now you can unmute everyone. Sir, you're muted, sir. Samir, sir, you're muted. Just unmute. Okay. Am I audible now? Thank you, Yeah, thank you, sir. So first thing is that आप लोग वड़ा पाव खाते हो ना, वड़ा पाव? Most of you, I suppose, सब लोग डाइट कॉन्शियस होंगे तो अलग बात है, पर मैं खुद डाइट कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं वड़ा पाव खाता हूँ, मतलब not every day, but obviously once in a while. तो ये ऐसा कोई आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आप एक शॉप में गए हो, कोई भी, जैसे कि बोरोली में दोस्त है मेरा मंगेश, वड़ा पाव बहुत फेमस है, मैं जाता हूँ कभी-कभी उसके पास, आज बात की है तो शायद जाऊंगा आज शाम को मैं, तो वो हम पाव लेके जाते हैं उसके पास और वड़ा मांगते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है आपके साथ कभी? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? नो सर। नो सर। लेकिन एग्जाम में करना है, एग्जाम में करना है, इसका ये मतलब नहीं एग्जाम में यू शुड कैरी पाव और आपको सेंटर में हम वड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके एक टेंटेटिव आंसर्स का इंट्रोडक्शन आप बना के लेना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 में 4 टॉपिक्स आएंगे आपको, ए बी सी डी। ए में आएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, टू सर्व विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड और टू साइन ऑफ फोर। तो अभी मैंने बच्चों को क्या बता के दिया, आप एक इंट्रोडक्टरी लाइन बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का इंट्रोडक्टरी और 5 के ए का सेकंड क्वेश्चन का क्लोजिंग, यानी 5A, B, C और D के आप एक का इंट्रोडक्टरी यानी क्वेश्चन जो 1 होगा उसका इंट्रोडक्टरी और क्वेश्चन 2 जो होगा उसका क्लोजिंग आप बना के रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी टू सर्व विथ लव है, ये नॉवेल है, तो उसका मैंने इंट्रोडक्टरी क्या बनाया है, दिस इज वन ऑफ द extraordinary novel written by A.R. Bretsworth about racial discrimination and the segregation based on it. The novel and then the novel के आगे आप वो आंसर लिखिए जो क्वेश्चन में है। अगर उसका क्लोजिंग करना है तो this novel is a epitome of understanding humans going beyond the frivolous things like color, caste, creed and gender. It speaks about universal brotherhood. देखो मैंने क्या किया मन में, मैंने टेंटेटिव ऐसा इंट्रोडक्टरी और टेंटेटिव क्लोजिंग ऐसा एक आंसर बना के रखा। फॉर एग्जाम्पल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. Around the world in 80 days is written by one of the greatest writers of French literature and father of modern science fiction, Jules Verne. देखा मैंने क्या किया, मैंने उसको इंट्रोडक्टरी बना के रखा, उसी का क्लोजिंग। थ्रू दिस नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड द राइटर brings out not only the global panorama but also how we humans are connected, though we are separated by caste, creed, languages and various other things, yet on a subtle level we are close knitted as। देखो मैंने ऐसा एक टेंटेटिव उसका क्लोजिंग और इंट्रोडक्टरी बना के रखा। To sign of four, this is written by one of the legendary writers especially in mystery genre, Sir Arthur Conan Doyle। और क्लोजिंग बना के रखा, Sherlock Holmes is one of the enduring characters in the history of English literature। आप देख रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, टेंटेटिव आंसर्स का क्लोजिंग और टेंटेटिव आंसर्स का ओपनिंग बना के रखने का, उससे क्या होता है, when you see the actual question तो उसका जो आंसर फ्रेम आप करोगे
उसके लिए अपने पास ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो योर आंसर विल बिकम गुड इनफ इन द सेंस 7 to 10 लाइंस, और आपको उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। और क्लोजिंग भी है। अब ये कैसा है, जैसे मैंने कहा वो पाव है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप जो पाव लेके जाओगे उसी में आपको वड़ा डाल के खाना है। when you go to some shop and they are offering you nice chutney with all stuffed into pav, you say भाई मेरा पाव मैं रख देता हूँ, आप ही मुझे वड़ा पाव दे दीजिए। I suppose my purpose is that same। आप इंट्रोडक्टरी और क्लोजिंग कुछ लाइंस आज ही बना के रखिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कल बना के रखिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, या किसी की हेल्प लीजिए, हेल्प की जरूरत नहीं है। पर जब एक क्लोजिंग और इंट्रोडक्टरी मेरे पास है एंड यू फाइंड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच यू फील आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, तो आपको उसका क्लोजिंग और आपको उसकी इंट्रोडक्टरी यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये आंसर आपको पूरी तरह से आता है। बट इन अ गिवन सिचुएशन ये आंसर में मैं क्या लिखूं, ये आंसर का शुरुआत, बिकॉज दिस इज व्हाट जनरली स्टूडेंट्स कम अक्रॉस, इसके लिए आपके पास इंट्रोडक्टरी है तो उसको लिख दीजिएगा, और अपने आप फिर बचा हुआ जो पार्ट है उसको you can manipulate and put down the answer। उससे क्या होगा exactly अगर मैं कहूं तो लिखा ही नहीं तो 0 मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ लिख के आओगे तो हाफ का कुछ जुगाड़ हो सकता है। you can ask your teachers, इंग्लिश एग्जाम में अगर हाफ you gain half, that half will actually become 1। खाली आप हाफ 12th में ऐड करते हो ना आपके पूरे क्वेश्चनर्स में, तो आपका तकरीबन 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं मैक्सिमम, अराउंड 3-4 तो बढ़ते ही हैं जस्ट बाय स्कोरिंग हाफ। तो आपका अगर सिचुएशन आ जाता है जैसे आप मेरी तरह स्टूडेंट हो काफी डम और आपको आंसर ही नहीं आ रहा है, फिर भी मेरे पास एक इंट्रोडक्टरी लाइन बना के रखी है, वो तो लिख, एटलीस्ट यू कैन राइट समथिंग, बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। दो आई नो आपका ऐसा कुछ सिचुएशन होगा नहीं, बट it is always safer to have something in our hand and nothing in the bush। so ये एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स का डेट आपके पास आ चुका है, आपके पास देखने जाए तो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट, और फॉर्चुनेटली कल आपका एग्जाम है, तो आज जस्ट ट्राई आउट कि ये सारे क्वेश्चन 5 के आंसर्स का कुछ इंट्रोडक्टरी, जहां जहां टॉपिक आपको लगता है डिफिकल्ट है, बिकॉज बाकी तो ठीक है कैरेक्टर स्केच वगैरह तो आप लिख सकते हो, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बिकॉज यू मे फाइंड इट लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आपको मेमोराइज करके रखना है, सो दैट कुड बी योर जैसे कैच सिचुएशन। और उसी तरह क्वेश्चन 4 पे भी, अभी क्वेश्चन 4 यू हैव राइटिंग स्किल्स, उसमें क्वेश्चन 4A यू हैव वर्चुअल मैसेजेस, SOP एंड सो विद ग्रुप डिस्कशन। आप अभी से सोच लीजिए कि मैं SOP लिखूंगा, मैं वर्चुअल मैसेज लिखूंगा, मैं ग्रुप डिस्कशन अटेम्प्ट करूंगा, तो यू डू दिस, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी आप ट्राई नहीं करोगे, यू शुड ट्राई। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सोचा कि आई विल डू SOP बिकॉज SOP बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं SOP ट्राई करूंगा, सो आई प्रैक्टिस SOP 4 टाइम्स थ्रू आउट टिल एग्जाम्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वर्चुअल मैसेज आप करोगे ही नहीं, और ग्रुप डिस्कशन वो भी एक एक बार करके रखना है। द रीजन व्हाई इन केस SOP आया थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है फॉर स्पेकुलेशन एसिमिलेशन जो प्रोसेस है, तो यू कैन थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस, तो अदर ऑप्शंस शुड बी ट्राइड आउट, पर फोकस पॉइंट रखना है हमको। तो मैंने SOP लिखना है, तो SOP आई ट्राई आउट 4 टाइम्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आ जाएगा मेरे पास लिखने के लिए। सो व्हेनेवर आई हैव टू राइट SOP आई हैव डन दैट। तो प्रीवियस आपका जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो हमेशा सरफेस करता है बाय गिवन सिचुएशन। तो अपने मतलब ये करके रखा। फिर सेकंड में ईमेल है, रिपोर्ट राइटिंग है, यू डू वन ईमेल। अभी ईमेल एक्चुअली बच्चों को करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू डू फ्रीक्वेंटली सेंडिंग ईमेल्स, रिसीविंग ईमेल्स, तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसको ट्राई करना है। अभी मैं सोचूंगा कि मैं रिपोर्ट राइटिंग करूंगा, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, अभी आप कभी भी देखना और WH क्वेश्चंस को आप हेडलाइन से ज्वाइन करते जाओगे,
For example, headline है 5 killed in road accident. You just ask questions when, where, why, what, how. उसका answers आपको मिलते जाएगा. You can write down your report writing. For example, 5 killed in road accident. Where? Where पूछा तो answer भी मैंने ही देना है. The accident, the major accident killing 5 and injuring 26 people took place on Mumbai-Pune Express Highway. तो मेरे answers आते हैं. I keep writing my report. तो ये रिपोर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लेस 5 killed in road accident. बाद में प्लेस का क्या लिखेंगे? तो लिखने का ब्रैकेट में मुंबई. फिर आपके सर बोलेंगे ये तो मुंबई में एक्सीडेंट हुआ नहीं है. आप कोई भी हेडलाइन के बाद ब्रैकेट में अगर मुंबई लिख देते हो, ब्रैकेट क्लोज के बाद रिपोर्ट थ्रू CNN, रिपोर्ट थ्रू PTI, ये लाइन ज्वाइन कर देते हो ना, तो wherever is the news taking place, मुंबई will be the appropriate thing to add on with. अभी ये देखो, ये CNN, TNN, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Reuters, ये एजेंसीज हैं. सॉरी, तो दे कलेक्ट न्यूज अक्रॉस. तो आप अगर ग्लोबल न्यूज देखोगे ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास इतने रिपोर्टर्स नहीं है कि दे गो आउट एंड कलेक्ट न्यूज फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. आज के टाइम गोवा जोकोविच का न्यूज है, कहीं ऑस्ट्रेलिया का, कहीं ये कोई जनाब है जो कब से सीटी बजा रहे हैं भाई. आपको अगर दिक्कत हो रही है तो मैं चले जाता हूँ, या तो जैसा आप कहो सर. कब से सीटी बज गई, मैंने बोला ये किसका प्रेशर कुकर बज रहा है भाई, तो खाने का टाइम हो गया लगता है किसका. सो एनीवे, थैंक यू. नाउ द पॉइंट इज कि मैंने अगर CNN, TNN, Reuters, PTI लिख दिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दीज आर द न्यूज फ्रीलांसर्स. जो आपने पीटर पार्कर के बारे में सुना होगा, फ्रीलांसर्स वो न्यूज कलेक्ट करते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया को देते हैं. आई नो पर्सनली मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया के पास 50 भी रिपोर्टर्स नहीं होंगे, बट दे कलेक्ट न्यूज अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज देयर आर सो मेनी एजेंसीज. तो आपने जैसे ही वो लिख दिया ना 5 killed in road accident ब्रैकेट मुंबई, और पहला लाइन report through CNN, TNN, Times, News Network, Press Trust of India, Reuters, then आप कहीं पे भी वो न्यूज हो, मुंबई इज अ वैलिड प्लेस. और उसके बाद फिर 5 आपके जो क्वेश्चंस है, वेयर, व्हेन, व्हाट, उसका प्रायोरिटी बेसिस. 5 killed in road accident, तो प्रायोरिटी क्वेश्चन आता है वेयर. मुझे पढ़ने के पहले पूछना है वेयर, तो आप लिखोगे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे. सच आंसर्स यू कैन जस्ट पुट इट डाउन. पहले पैराग्राफ में 5, दूसरे पैराग्राफ में उसको एलॉबरेट करना है, एक्सटेंड करोगे. अभी आपने देखा, मैंने बोला 5 killed in road accident और 26 people injured, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखना है ये 5 killed में 3 are women, 2 are men above 60, 26 injured, they were shifted to nearby hospital. Out of that 3 are seriously still in critical condition, rest of them discharged. देखो ये एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन सेकंड पैराग्राफ में आता है. और सेकंड पैराग्राफ में आप डबल कोट्स, यानी कोई भी न्यूज हो 2 डबल कोट्स आपके होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ये विराट कोहली का रेजिग्नेशन है, तो विराट कोहली के रेजिग्नेशन पे सीनियर क्रिकेटर XYZ he said this is a sad thing for Indian cricket. और फिर दूसरा एक ऑडियंस या आप जैसे स्पेक्टेटर्स that ऐसा एक सेकंड डबल कोट्स 2 बार आने चाहिए आपके सेकंड पैराग्राफ में. और थर्ड पैराग्राफ इज नॉट अबाउट द न्यूज, प्रीवियस थिंग. जैसे कि 5 killed in road accident, तो थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे दिस इज द थर्ड इंसिडेंट इन लास्ट 6 months, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड MMRD शुड लुक इनटू दिस. आप समझे ना मैं क्या बता रहा हूँ. तो ऐसे टेंटेटिवली आप न्यूज बना के रखो. सिमिलरली इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, तो दे मे आस्क यू फॉर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एनीबॉडी. ऑब्वियसली वो नाम नहीं देंगे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ब्रायन लारा. द रीजन व्हाई, बिकॉज़ स्पेसिफिक नाम दे अवॉइड. तो क्रिकेटर का नाम देंगे, लाइक क्रिकेटर, सोशल वर्कर, ऐसा नाम देंगे लोग, ऐसा एक एम्बिगियस टर्म देंगे. अभी इंटरव्यू के लिए हम एग्जाम तक क्यों रुके? टेंटेटिव में आज ही 5 क्वेश्चंस बना के रखता हूं, आज ही. प्लीज टेल अस more about yourself. एक क्वेश्चन रेडी हो गया.
failure comes the initial part of any success story followed by the grand success. Was it the same about you? अभी देखो ऐसे मैंने 5 टेंटेटिव क्वेश्चंस बना के रख दिए और 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, 5 मैं क्वेश्चन पेपर देख के फ्रेम करूंगा. तो 5 रेडीमेड है, वो पाव है, और 5 मैं क्वेश्चन पेपर देख के. अब लिखूंगा कैसे? तो 5 जो क्वेश्चन पेपर मैंने देख के बनाए, 5 जो टेंटेटिव बनाए मैंने, व्हाट इज द मैसेज ऑफ ये जो है. तो पहला मैं क्वेश्चन पेपर देख के जो क्वेश्चन बनाऊंगा, जो एक्चुअल पेपर देख के बनाऊंगा, और दूसरा जो मैंने फ्रेम ऑलरेडी किया है, सो इट गोज इनटू सिंक. अभी सर मैं आपको बताऊं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन लिखने के पहले ब्रैकेट से शुरू करना है. सो व्हाट यू शुड राइट इन ब्रैकेट? The below given extract is the interview taken by our college editorial team for our annual magazine Gulmohar, bracket close. तो ये एग्जामिनर है, अभी तो कॉलेज के सर हैं आपके, वो चेक करेंगे, they know everything about you, पर एग्जामिनर को कहां से मालूम होगा? So when the examiner will see your answer starting with the bracket word, below given is the extract of the interview taken by our college editorial team for our annual magazine Gulmohar, वो ये समझ जाएगा कि आपके कॉलेज का मैगजीन है, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी कॉलेजेस एंड स्कूल्स, इंक्लूडिंग आपका भी हो सकता है. वी हैव इन हाउस मैगजीन जो अपने कॉलेज में होता है, इन हाउस जो आप आपके एंटरप्राइज में या आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में या आपके जो भी कंपनीज हैं उन सब में होता है. तो ये इन हाउस मैगजीन के लिए आपने ऑलरेडी काम किया है. देन दैट एग्जामिनर ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल वुड अज्यूम, या इसको तो सब इंटरव्यू के बारे में पता होगा. इवेंचुअली उसका जो अप्रोच है वो स्कैनिंग मोड पे जाएगा, मोड स्कैनिंग जाएगा, तो आपके सारे आंसर्स वो कंप्लीट थरो नहीं देखेगा, एक स्कैन करेगा. उससे फायदा ये होता है ना, गलतियां छुप जाती है अगर कहीं है तो. एंड वी हैव टू मेक 10 क्वेश्चंस. अभी उसके 10 क्वेश्चन शुड बी ऑल ओपन एंडेड क्वेश्चन, WH, बिकॉज ये मतलब WH क्वेश्चंस के साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन आप एक आध दो स्टेटमेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा every story begins with failure leads to a grand success, so is it the same is about you? ऐसा कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन सब बना सकते हैं. मैं आपको ओवरऑल बना रहा हूं कि कैसे इंटरव्यू का पैकेज हम करते हैं. इंटरव्यू क्वेश्चंस पहले 3 होते हैं अबाउट फॉर्मेटिव. आपको स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू लेना है, आपको मुंबई डब्बे वाले का लेना है, या कोई सोशल वर्कर का लेना है, फ्रंटलाइन वर्कर का लेना है, डॉक्टर का लेना है, व्हाटएवर. The first 3 questions will be about his formative. I missed out the question. मैं ये आप मुझे पूछिए, मैं बता रहा हूँ. You frame 3 questions basically about the past of that person. यानी formative, उसका schooling, उसका college, उसका how he came, she came into this thing, whatever is the profession, उसका formative. Next 4 questions हमेशा इंटरव्यू लेते वक्त फेलियर्स एंड सक्सेसेस ऐसा कॉम्बिनेशन होता है. यू आस्क अबाउट द फेलियर्स, प्रेडिकामेंट्स, प्रॉब्लम्स, सफरिंग, obstacles, and then the next 2 questions about the success story, about the recognition, about the awards, achievements. First 2 failures, next 2 success stories. So 3 plus 4 7. 8th question about the future plan, और 9th question जो इसके साथ ना हो पर कुछ और हो. फॉर एग्जाम्पल फ्री टाइम एक्टिविटीज. Yes, I'll do that, Chitra. They say you ask him or her about the free time activities, leisure activities इसको हम बोलते हैं. Sir, madam, what you do when you हाँ अर्पित, मैं बताता हूँ आपको. I'll do that. कि भाई आप what you do in your free time activities, ऐसा कुछ पूछ सकते हो उनको. और 10th question will be the message. ये सिंपल फंडा है. तो इस पे आपको you think about these 10 questions, और उसमें से आपको जो लगता है 5 अभी बना के रखिए. टेंटेटिव क्वेश्चंस जो हम बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हम किसी को भी पूछ सकते हैं, such tentative questions. Now about report, जैसे मैंने कहा, report is in 3 paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ 5 लाइन्स, सेकंड पैराग्राफ मेन बॉडी, जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें सारी कंप्लीट न्यूज, एंड थर्ड पैराग्राफ जो होता है क्लोजिंग जिसे कहते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट होता है कि भाई इंडिया के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में आपको, मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के बारे में आया है. तो थर्ड पैराग्राफ में ना
प्रेजेंट सीरीज के बारे में नहीं होता है, प्रीवियस सीरीज जो उसके पहले या इन द हिस्ट्री। तो आप लिख सकते हो कि दिस इज third time that India had won the uh, uh, you know series in the Australian soil, defeating Australia 5-0, ऐसा कुछ लिख सकते हो। या this is a third incident of accident का है तो this is a third incident in रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का आएगा तो मत लिखना दिस इज थर्ड इंसिडेंट इन लास्ट 6 months, वो एग्जामिनर पागल हो जाएगा। You say the day of the national day of Republic Day was celebrated with grandeur and every year, ऐसा कुछ एक लाइन एंड में लिखना है, ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे तो अदरवाइज रेफरेंस पॉइंट लिखना है। और फर्स्ट पैराग्राफ विंडो, सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने खाली लिखा था 5 killed and 26 injured, पर सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखते हो 5 killed, आउट ऑफ दैट 3 women, 2 are senior citizens male, 2 senior citizens above 60, 26 injured, 20 मतलब 3 of them are ICU under observation and rest of them are discharged। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ना वो सेकेंड पैराग्राफ में कंप्लीट लिखना है। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रक ड्राइवर है, उसके साथ बस का और ट्रक का हुआ, तो दैट ट्रक ड्राइवर इज एब्सकॉन्डिंग बट वाज nabbed by the patrolling police party। ऐसा ये सेकंड पैराग्राफ में कंप्लीट होना चाहिए। द कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस सेड वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द ड्रिंक एंड ड्राइव सिनेरियो, या वी आर गोइंग टू इनिशिएट द अवेयरनेस ड्राइव अबाउट, ऐसा कुछ लिखने का। इसके लिए एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आपके पास है। आज से आप क्या कीजिएगा तो दिन में एक तो न्यूज आर्टिकल, आपको अगर न्यूज लिखना है, इफ यू से आई विल बी डूइंग न्यूज रिपोर्ट, तो आप देख लीजिए। रिपोर्ट राइटिंग तो मैंने कहा इट्स, ये आप मत सोचिएगा आप क्या लिखोगे, यू चेक इट आउट ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। इसके पहले क्वेश्चन पेपर पे मैंने क्या लिखा था, उसका मार्क्स क्या आता था। फॉर एग्जांपल कल के पेपर में कोई इंटरव्यू लिखेगा and out of 4 उसको 3.5 मिला, it means good। तो इसका मतलब you can write interview question in exams as well, क्योंकि आपको 3.5 मिला, it's really good। और टीचर ने अगर कमेंट भी दिया है कि it's very good, तो समझ जाना ये आपको एग्जाम के लिए क्लू है। पर आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखा है और वहां पे कुछ मार्क्स 3 मिले हैं और टीचर ने कुछ स्टेटमेंट लिखा है कि इम्प्रूव दिस एंड दिस, तो ये समझ जाना कि इसको अगर लिखना है तो मुझे ये एरिया इम्प्रूव करना है, या फिर यू कैन ट्राई आउट समथिंग न्यू। पर आपके पास टाइम है, जस्ट कीप ट्राइंग। पर मैंने जैसे कहा लिखोगे तभी, टाइम काउंट किए बगैर लिखना नहीं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। नाउ राइटिंग स्किल्स में मैंने जैसे कि अभी क्वेश्चन 2 किया हमने, जहां पे हम रिपोर्ट और इंटरव्यू करते हैं, वैसे राइटिंग में क्वेश्चन 4 सी कंसिस्ट ऑफ स्पीच कंपेयरिंग, एक्ट ऑफ कंपेयरिंग। अभी कैसा है मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये दोनों चीजें कुछ की है, स्पीच कंपेयरिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। पर अगर मुझे आप बोलो सबसे इजी क्या है, तो तीनों है, लेकिन उसमें एक्सपेंशन ऑफ आइडिया सिंपल ये है क्योंकि आपको उसके लिए आपने 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में भी वो किया है, 9th में भी किया है और 11th में भी किया होगा, तो एक आपके पास एक्सपीरियंस है लिखने का। अभी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि स्पीच इन टाइम सेव्स 9, स्पीच इन टाइम सेव्स 9, सॉरी। तो उसको कैसे लिखने का, व्हाटएवर इज द फ्रेज, इडियम, प्रोवर्ब, उसको एक्सप्लेन करो इन फर्स्ट 5 लाइंस, जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं कि स्पीच इन टाइम सेव्स 9 मींस it's a universal message that whatever things do come up and it needs your attention, then person should pay the attention to that situation, otherwise has to face some repercussion, and so stitching time saves 9 is a very famous idiom। second paragraph में उसको exemplify करने का। अभी आप बोलोगे ये exemplify करने का मतलब एग्जांपल लिखने का, तो should I write about Elon Musk, should I write about Steve Jobs, should I write about Martin Scorsese, should I write about Viv Richards, should I write about this and that, तो उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, गुड। नहीं तो उनके बारे में पढ़ो अलग से, ये किसके फादर और मदर ने बोला है, आई डोंट थिंक सो इट इज। आप अपना एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो मैं लिखता हूं कि I was preparing for my 12th boards simultaneously for NEET exams
and I gave full throttle for studies, 12 hours and 14 hours a day. Unfortunately, I skipped out my regular exercising and sports. I'm a sports person and athlete, but due to the confined state of pandemic and my exams of 12 boards and NEET, I was focused of scoring better, and so I gave up my exercising regime. My sister, who is a physiotherapist or a nutritionist, she would always tell me not to do so. At least spend an hour, or if not, 45 minutes for your exercise. But I was keen to achieve remarkable things in my boards, and I did that, including even the NEET exams. But during this entire 2 long years, I was unable to control my diet, and so after the exams, when there was a breathing space of 6 months to for my medical college, I realized that I had put on 9 kg extra. I was looking pompy, and so I recollected what my sister said about my health, and so I immediately asked her to help me out, and she gave me a regime and a strict diet plan, which I followed, and today I'm still energetic the way I was previous. And then I realized that's because once while talking to me, she said stitching time is always. And then in your third paragraph, you mentioned that why stitching time saves nine is most important message. You got it from your sister and you want to convey it to all. Okay, expansion of idea. First paragraph 5 lines, second paragraph 12 maximum lines, third paragraph 3 lines. So 5, 12, 3. So it is almost 20. लेकिन उसको आपने 22 भी किया तो भी चलता है, 25 भी किया तो चलता है. इट इज बेस्ड ऑन योर टाइम, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉलोड बाय 5 और यहाँ पे हमको बहुत कुछ लिखना है, तो अपने पास टाइम शुड बी समथिंग व्हिच यू शुड लुक आउट फॉर. नाउ अभी आपने इंटरव्यू, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, रिपोर्ट है, ईमेल है. ईमेल स्टूडेंट्स डू राइट फ्रिक्वेंटली, लेकिन जिसको नहीं पता है कुछ, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा. लेकिन इफ देयर इज समबडी, देन आई टेल यू हाउ यू शुड टेल योर एग्जामिनर कि भाई ये ईमेल लिखा है, फर्स्ट लाइन सेंडर्स लाइन, रिसीवर्स लाइन, सीसी एंड सब्जेक्ट. तो इसमें 123.abc@gmail.com, यहाँ पे जो आदमी के लिए आपने राइट एप्रिशिएटिंग email appreciating Denzel Washington, तो 123.denzel.washington@gmail.com, cc the principal desk.gmail.com, and then the subject, that appreciating the work of yours, simple. And then you क्योंकि आपने जो इनिशियल किया है एग्जामिनर को समझ में आएगा. अभी आप देखोगे कि हम जब ईमेल लिखते हैं तो देयर इज अ लाइन फॉर सेंडर, लाइन फॉर रिसीवर, लाइन फॉर सीसी एंड लाइन फॉर सब्जेक्ट. तो एग्जाम पूरा लिखने के बाद मैंने कहा जो लास्ट में आप पेंसिल उठाओगे, when you come to question number 4, when you come to question number 4 B part, सब्जेक्ट को अंडरलाइन बनाओ और रिसीवर को ऑब्जेक्ट सीसी को अंडरलाइन एंड सब्जेक्ट को सेंडर, रिसीवर, सीसी एंड सब्जेक्ट. You draw these lines and make a box. The moment you create that box after your exams, the examiner will get the feel of an email and your job is done. So this is for email. अभी speech, जो बच्चे ने एलोक्यूशन वगैरह में गए हैं उनको पता है स्पीच एकदम कॉमन होता है, बिकॉज स्पीच में हमेशा we start with something introductory part. In introductory part हम हमेशा सब जगह एक ही काम करते हैं. जैसे कि सर ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैं शुरू हुआ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टू माय प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स whom I am talking to today. It's my proud pleasure to speak to you on a given topic. And then the topic, तो इंट्रोडक्टरी हम लोग घर से ही लेके जाएंगे. और क्लोजिंग, on this note I end up my speech with a very famous quotation of John F. Kennedy when he said, we should never think what the country has done for us, but the priority should be what we can do for the country. So my friends, let us come together and be united. ऐसा मैंने ऑलरेडी बना के लेके गया, क्योंकि जो भी स्पीच आएगा कहीं ना कहीं इसी थीम पे आएगा. कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगा. सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये यूनिफाइड कोलैबोरेटेड एफर्ट्स पे ही होगा. नेचर पे होगा, एनवायरमेंटल इश्यूज पे होगा, स्पोर्ट्स पे होगा, कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पे होगा. तो मेरा जॉन एफ केनेडी का स्टेटमेंट विल बी द बेस्ट पेरोरेशन टू क्लोजिंग.
अभी देखो स्पीच के लिए भी मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग घर से ही लेके गया, बीच का जो पार्ट है वो खाली मैं टॉपिक देख के बनाऊंगा। अभी आर्ट ऑफ कंपेयरिंग वो भी मैं आज से पूरा बना लेता हूँ, बिकॉज आई डू एंकरिंग फॉर सो लॉन्ग। इतने साल से एक इवेंट होती है, उसकी शुरुआत एकदम यूनिवर्सल होता है, मतलब इंडिया में तो पैन इंडिया सब जगह सेम होता है। लाइटिंग ऑफ द लैम्प, introduction of the guest, introduction of the event, followed by welcome song, welcome dance, speech by the guest, speech by your principal, vote of thanks. That's all. उस पर मैं आज ही 3-3, 4-4 लाइन बना के ले जाता हूँ। और if I'm planning for art of comparing, तो खाली वो टॉपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपिक आपको देंगे। इट इज अबाउट साइंस एग्जीबिशन, इट इज अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप, व्हाटएवर इट इज। पर आपको इसमें चेंज कुछ नहीं करना है, बस आप जब इंट्रोड्यूस करोगे लाइटिंग ऑफ द लैम्प, तो उस लाइटिंग ऑफ द लैम्प के साथ कनेक्ट कर देना वो टॉपिक का पर्पस। lamp is something which is not only the lamp which gives light, but it is a symbolic element which gives us light within. And in Indian scriptures, light is defined as the source of life and purpose of life. So today we all are here because blood donation, and blood donation is a source of life. So I welcome, ऐसे करके उसका इंट्रोड्यूस किया उस टॉपिक को लाइटिंग द लैम्प के साथ, और फिर जो भी लिस्ट ऑफ इवेंट्स वो देंगे आपको एग्जाम में, वेलकमिंग द गेस्ट, स्पीच बाय द गेस्ट, वोट ऑफ थैंक्स, तो उसमें बस एक एक दो लाइन जोड़ देना है आपको। दिस इज व्हाट यू शुड डू इन आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, जो आप घर से करके जा सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ईमेल, सॉरी, रिपोर्ट, स्पीच, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी आपने देखा है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है रिव्यू और ब्लॉग राइटिंग। अभी ये थोड़ा सा कैसा है, ये हम टॉपिक देख के कर सकते हैं। उस पर मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता कि भाई आप ब्लॉग के बारे में अभी से लिख सकते हैं, या फिर रिव्यू कौन सा आएगा, बुक आएगा, फिल्म रिव्यू आएगा, या अपील। लेकिन अपील के बारे में वी कैन डू इट इन एडवांस, लाइक कम वन कम ऑल, बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट। जैसे कि मैंने एक अपील के लिए ऑलरेडी एक लाइन बना के रख दिया, कम वन कम ऑल, जॉइन द मूवमेंट टू बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी मैंने क्या किया मालूम है, आई यूज होमोफोन्स, कम वन कम ऑल, ये तो कॉमन है, बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट, MOVEME, be the part of the movement, colon sign, and achieve the movement of life, MOMENT, movement of life। तो दोनों मूवमेंट मैंने एक ही लाइन में यूज किया, इट बिकम्स अ कैची लाइन। और अपील तो टॉपिक जो है उसके बेसिस पे होता है, एक इंट्रोडक्टरी लाइन, उसके बारे में पर्पस, फिर वेन्यू, डेट, टाइम, चीफ गेस्ट, एकदम सिंपल है। उसको भी बॉक्स बनाने का एग्जाम खत्म होने के बाद। चीफ गेस्ट में आप सोशल वर्कर का नाम लिखिए, स्पोर्ट्स पर्सन का लिखिए, अवॉइड फिल्म सेलिब्रिटीज। और प्राइजेस में आप लिख सकते हैं कि द फर्स्ट कम फर्स्ट 52 रजिस्टर इन अवर मैराथन विल गेट साइंड टीचर्स बाय द गेस्ट। प्राइजेस विल बी गिफ्ट्स and freebies and vouchers, ऐसा आप लिख सकते हैं। donations is accepted under CC, ATCC, ऐसा जो भी आपको लगता है वो आप लिख सकते हो अपील में। टाइम, अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने मैराथन का बोला, तो मैराथन का रूट बहुत जरूरी है, अदरवाइज आई डोंट नो वो ट्रैक कौन सा होने वाला है। तो यू शुड राइट इन दी अपील के द रूट ऑफ मैराथन, तो आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं। your college is situated in Mahavir Nagar, if I'm not wrong. Yes, sir. तो अभी देखो कॉलेज प्रीमाइस डैश डैश सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू, अभी वो किधर है मालूम नहीं, डैश महात्मा गांधी गार्डन, डैश नेताजी सुभाष चंद्र फ्लाईओवर ब्रिज क्लोजिंग, बैक टू द स्कूल प्रीमाइस और कॉलेज प्रीमाइस। ऐसा वो जो ट्रैक हम देंगे, तो अभी मैं लेट ज्वाइन कर रहा हूँ उस मैराथन में, सो आई कैन कम टू नो वेयर इट इज। दो मैराथन हम शुरू से ज्वाइन करते हैं, बट इफ देयर इज एनीथिंग कॉल्ड पदयात्रा और मार्च और एनीथिंग एज सच,
तो उसका आप रूट दीजिएगा. इफ इट इज एनीथिंग अ मूवमेंट वेयर पीपल आर गोइंग टू जॉइन एंड वॉक फॉर अ माइल आल्सो. अगर ये बुक फेयर के बारे में, आपके कॉलेज में आपने बुक फेयर रखा है, तो बुक्स की मालूमात देने का, तो उसमें लिखने का द रेंज ऑफ द बुक्स इज फ्रॉम ऑल जॉनरा टू फिक्शन टू नॉन फिक्शन, फ्रॉम रीजनल टू इंटरनेशनल. ऐसा एक लाइन देने का, तो people who are supposed to come will know what things they will find there. तो ब्लड डोनेशन में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, खाली आपको देना है कि ब्लड डोनर्स विल गेट फ्रीबीज एंड आल्सो विल गेट अ कार्ड, जो हम ब्लड डोनर्स को मिलता है कार्ड, एंड सरप्राइज गिफ्ट. ऐसा हमको लिखना है ताकि लोग आए. वी हैव टू ब्रिंग देम इन. अपील इज टू ब्रिंग देम इन. अभी लाफ्टर्स क्लब पे अपील आ सकता है. एनीथिंग दे कैन गिव यू. सो यू जस्ट हैव टू मेक दिस थिंग वर्क. You pen it down that way. उसमें और एक बात बता दूं, n number of times my students they come up to me and say कि भाई इसमें कुछ ड्राइंग करें क्या, हम लोग कुछ बनाएं क्या. जैसे कि फॉर रैली फॉर ब्लाइंड है, अगर रैली फॉर ब्लाइंड है तो उसमें हम ड्रॉ करें क्या. इट्स अप टू यू. आई डोंट से यू डू और आई डोंट इवन से यू डोंट. बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो आपकी ड्राइंग अच्छी हो, मेरी तरह ना हो, वरना जो बना है वो उसमें और काम बिगड़ सकता है. सेकंड, इफ टाइम परमिट्स, अपील राइटिंग हो, whatever it is in writing skills, spend 15 maximum minutes. तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपील बनाते हुए ड्रॉ करो और उसमें 10 extra minutes दो, then that will be a waste of your skills, because वो आपके 25 मिनट में मार्क्स तो 4 ही है, उसमें से 3.5 मिल सकते हैं. पर अगर आप बोलोगे कि मैं ड्राइंग भी अच्छा करूंगा और ये सब, तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. सो थिंक अबाउट दैट. आपका जो घड़ी है वो आपको एग्जैक्टली डायरेक्ट करेगा व्हाट शुड यू डू. But I will not ask you to draw a lot of things, because drawing is not by any chance the primary criteria for assessment. Content होना जरूरी है, तो that's all it is. Now question number 5 तो मैंने बता दिया है. It's a memory based, तो आपको you have to work out. Character sketch वगैरह easy होता है, हम पहले से उसको बना सकते हैं. कि Sherlock Holmes is so and so as a character. Dr. Watson is so and so as a character. Miss Watson is so and so as a character. Passepartout is so and so as a character. Mysterious form is so and so. Character sketch का difficulty नहीं है, बस flow of events जिसको हम बोलते हैं वो memorize करके रखिए. Flow of events के sign of four कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और around the world और same day. और novel history of English novel में बहुत सारे नाम है, राइटर्स के नाम है, बुक्स के नाम है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स के नाम है, नॉवेलाज है, अलग टाइप के जॉनरा हैं, साइंस फिक्शन है, उनको जरा देखना पड़ेगा, बिकॉज दे मे आस्क यू सम एक्टिविटी बेस्ड ऑन इट. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कम्स फ्रॉम योर यूनिट नंबर 1, और समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तो इसका मतलब साफ है कि यू शुड बी गुड विथ योर कंटेंट. सो आपको आपके टेक्स्ट बुक में An Astrologer's Day, Cop and the Anthem, Voyaging Towards Excellence, ये टॉपिक आपको समझने चाहिए. अब उसके लिए मैं आपको एक क्लू दे सकता हूँ, some technique which you should use if your family permits or your teachers allow you to do. ये व्हाट्सएप ग्रुप हम जो बनाते हैं, तो उसमें हम गॉसिपिंग करते हैं, दैट्स फेयर. हम यहाँ वहाँ की बात करते हैं, उससे अच्छा मतलब वो है, ठीक है. Why don't you make one group? Not all of you. 8 students in one group. ये आप अपना एक बैगेज बनाओ. 8-10 चलेगा. And for example, we are into one group. मैं हूँ आपके टीचर्स हैं, मतलब as a student ना हम लोग 8 जन हैं. तो मैं I will say हम लोग 5 जन हैं, whatever it is. तो I will take an astrologer's day और उसका मैं एक समरी बनाऊंगा. An astrologer's day is written by R.K. Narayan, one of the pioneers of Indian English writer. The story is about so and so, so and so, so and so. There is this character called Guru Nayak, so and so, so and so. 8-10 लाइन के WhatsApp के मैं
written by वो है कि ऐसा मैं सेम विद यूनिट 2 पोएट्री का समरी बनाते वक्त आई विल प्रेफर डूइंग इट द वे एप्रिसिएशन इज डन. तो 4 lines about the title, 4 lines about the poetry, 2 lines about the poem, about the poetic devices. आपके हिसाब से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है ये लाइन का, एंड वॉट एवर द थीम, उसका राइमिंग स्कीम क्या है, वो नैरेटिव पोएम है या डिस्क्रिप्टिव पोएम है, स्पिरिचुअल है, फिलोसॉफिकल है, फनी है, व्हाटएवर. ऐसा करके आप उसको एक ग्रुप पे डालेंगे और ये आपका रिवीजन हो जाएगा. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन, ये आपका ग्रुप जो है, उस ग्रुप को आप ओपन करोगे तो उस पे सारी चीजें जो होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी. फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन लिखने के पहले आप अपने उस ग्रुप पे एक्चुअली कर भी सकते हो कि इज इट सो एंड सो इज, मतलब व्हाटएवर इट इज, कोई कोई टॉपिक है, अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड स्टफ लाइक दैट जो एग्जाम में आने वाले हैं. ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं, समथिंग डीलिंग विद टेक्नोलॉजी, समथिंग डीलिंग विद योर वर्ल्ड ऑफ एडल्सेंस एज. तो उस पे आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो, व्हाट इज योर ओपिनियन. तो 4 लाइन डाल दिए. ये सब चीजें आपको ना एग्जाम में काम आ सकती है. जैसे कि मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा है अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो साइंस वाले बच्चे हैं तो पता नहीं नीट एग्जाम्स के बारे में, तो मैंने उसका पिक निकाल के डाल दिया. तो उससे मुझे ना टॉपिक भी पता चल जाएगा, कंटेम्पररी इश्यूज भी पता चल जाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड भी मुझे कुछ उसका फायदा हो सकता है. सो दिस इज हाउ यू कैन, इफ योर फैमिली अलाउज यू टू मेक अ ग्रुप और योर टीचर्स आल्सो टेक देयर कंसेंट एंड डू इट, बिकॉज़ आई डोंट नो उसका क्या हशर हो सकता है. समटाइम्स दैट मे एंड अप इन समथिंग नॉट पर्पसफुल. थिंक अबाउट इट. अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 is going to come from your unit, your textbook, तो थरो है. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 is unseen, उसका पता नहीं कहां से आने वाला है. तो उसको क्या करना है, क्वेश्चन 1 मेरा थरो है, ऑल टॉपिक्स थरो है. तो व्हेन आई एम रीडिंग माय क्वेश्चन पेपर, मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम को थोड़ा सा शफल कर सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा फास्ट पढ़ सकता हूँ ताकि क्वेश्चन 2 में 2 बार पढ़ूं, बिकॉज इट इज अनसीन. तो मैं उसको आराम से 2 बार पढ़ूंगा एंड जस्ट ट्राई टू पॉइंट आउट व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट. अभी हम जब समरी लिखते हैं तो समरी माइंड्स दिए होते हैं, तो फिर भी बच्चे इतना सोचते हैं, अरे कुछ सोचने का नहीं. एक समरी जो भी अनसीन पैसेज दिया है उसको पढ़ते वक्त आप एक क्वेश्चन अपने आप को पूछो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैसेज. आंसर आ जाएगा. एक पैसेज दिया है लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ, लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ सो मच, लिटरेचर इज डिवाइडेड टू डिफरेंट फैक्शंस लाइक नॉवेल्स, एसेज, पोएम्स. पूरा हो गया. मैंने जस्ट पढ़ा और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैसेज. तो आंसर है, द पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू टेल अस अबाउट द वेरियस फैक्टर्स ऑफ लिटरेचर. अकॉर्डिंग टू द राइटर, लिटरेचर इज वन ऑफ द essential part of human history. It is a reflection of life where people, which consists of poems, plays, short stories, novels and essays. Topics देखो, ये मैं आते और या यू शुड राइट समरी अराउंड 7 लाइंस. उसका टाइटल का 1 मार्क है, तो उसके लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं. जो भी अनसीन पैसेज होगा उसका पहला लाइन में ही टाइटल होगा, पहला लाइन में ही टाइटल होगा. अभी देखो, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम, मैनी बिलीव लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. टाइटल मेरे को मिल गया, लिटरेचर है, लेकिन उसको थोड़ा सा जैसी करना है, थोड़ा फिल्मी करना है. तो मैं क्या करूंगा, लिटरेचर लिखूंगा कैपिटल लेटर्स में, फिर कोलन साइन देके के आगे लिखूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. जैसे पुष्पा, द राइज, पुष्पा द राइज, ऐसा. तो आजकल ट्रेंड चलता है, साउथ इंडियन फिल्म्स डब होके आते हैं, तो टाइटल एंड कोलन साइन के आगे उसी का एक एक्सटेंशन जो आप खुद से लिख सकते हो. इवन इफ यू स्कैन द पैसेज तो मिल जाएगा, लिटरेचर कोलन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. अभी माइंड मैपिंग है, माइंड मैपिंग इज आल्सो इजी. क्वेश्चन 2B में आपको आएगा, सी में माइंड मैपिंग में आपको बताएंगे भाई, you know lot of career, think about the career, think about
योर पर्सनालिटी, तो आपकी पर्सनालिटी क्या है? तो पर्सनालिटी अलग अलग लेवल पे होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लुक्स होते हैं, अटायर होता है, जेस्चर होता है, पोस्चर होता है, बिहेवियर होता है, एंड यू हैव टू डू दैट। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा अभी, आज आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है, 20 मिनट्स का टाइम है, हाफ एन आवर का टाइम है, तो एक माइंड मैपिंग का क्वेश्चन लिया और मैंने लिख बना दिया, एक समरी किया और लिख दिया। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज एज आई सेड, राइटिंग इज द ओनली कंसर्न फॉर यू पीपल, मेरी तरफ से। बाकी टॉपिक तो मुझे लगता नहीं आपको इतनी कुछ इश्यूज होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज मेमोरी बेस्ड, तो उसको जरा आप ध्यान से कीजिएगा। अभी कोई बच्चा है बोलेगा सर मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी आपने हमारा बहुत टाइम खा गया, तो मेरे पास टाइम नहीं है। नो प्रॉब्लम, आस्क योर मदर, आस्क योर फादर, आस्क योर ब्रदर, आस्क योर सिस्टर, समबडी इन योर फैमिली के भाई ये टॉपिक पढ़ो और मुझे बताओ। सो टुडे यू गो होम, मतलब आप घर पे ही हो, एंड यू सिट डाउन फॉर योर लंच, योर मामा इज सर्विंग यू डिलीशियस रेसिपीज, यू नो, एंड सम टेस्ट मील। तो आपके मामा आपको, मतलब आपकी माँ आपको बता रही है कि अरे वो शर्लक होम्स का स्टोरी है, साइन ऑफ फोर, उसमें क्या होता है, देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड मैरी मॉटरसीन, बहुत अच्छी लड़की है, उसको अचानक एक दिन, एंड शी वॉक्स इनटू शर्लक होम्स के दोस्त के साथ डॉक्टर वाटसन। देखो, आपको स्टोरी आपके मम्मी ने बताई, नो प्रॉब्लम, आज आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने को, आप आज कुछ और कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, स्टोरी तो समझ में आया ना, आइडिया क्लियर हो गई। सो व्हेन यू विल एक्चुअली रीड द साइन ऑफ फोर, तो आपका फ्लो जो होगा ना वो बहुत इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको उस स्टोरी का स्ट्रक्चर पता है। तो एक फिल्म में आपको बताता हूँ ओरली, ये फिल्म ऐसा ऐसा है, तो व्हेन यू वॉच दैट फिल्म इट मेक्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा हम कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को, फ्रेंड को, किसी को बोल सकते हो। हाँ, 12th स्टैंडर्ड का जो मैंने बोला, जो ग्रुप फॉर्म करना है, उस पर ये डिस्कस कर सकते हो, या आपका कोई कजन है, भाई है, बहन है, उसको आप ये टेक्स्ट बुक दे के बोल सकते हो, यार मेरे को पढ़ के सुना, तू पढ़ और मेरे को सुना बाद में, यू कैन डू दैट। और अगर वो 9th वाला है, फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर हु इज इन 9th स्टैंडर्ड, तो उसके लिए तो ये फायदा हो जाएगा, बिकॉज वो पढ़ेगा, भूल तो नहीं जाएगा, एक्चुअली वो याद रहेगा उसको, सबकॉन्शियसली वो स्टोर होता है। और जब वो एक्चुअली 12th में आएगा तो बोलेगा हाँ यार, क्योंकि दैट्स व्हाट इट हैपेंस। आपने कहीं एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले सुना है या देखा है टीवी पे, टीवी पे तो आया नहीं था, लेकिन आप बोले यार ये तो मैंने देखा है, दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो ऐसा हो सकता है। या फिर रिसेंटली जिसने अभी 12th अपेयर किया है, आपके भाई बहन या कोई कजिन है, तो वो तो आपको और अच्छा गाइड करेगा, बिकॉज उसके पास खाली लेसन ही नहीं, तो लेसन के रिलेटेड बाकी भी चीजें होंगी, तो वो शायद आपको ज्यादा बता सकता है। that is how we have to work, as I said, it's a collaborative work। अभी राइटिंग के बारे में मैं फिर से बताऊंगा, आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर कोई कर्सिव राइटर है तो उसने तो आज से शुरू करना है, जो रेगुलर राइटिंग करते हैं वो सब लिखना शुरू कर दीजिएगा। पेन, आप जो भी पेन आज यूज करोगे वो एग्जाम तक यूज करना है, ताकि आपके फिंगर्स को उस पेन की ग्रिप मूवमेंट आ जाए, तो आपका जो फिंगर टिप्स होता है वो पेन कम होगा। ऑब्वियसली पेन तो होना है, बिकॉज हम बहुत लिखते हैं, तो उस पर आप जब भी लिखते हो याद ये रखना है कि एक पूरा क्वेश्चन होने के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी पूरा लिखने के बाद, कीप योर पेन डाउन, और व्हेन यू स्लाइड योर हैंड एब्सोल्युटली डाउन, पूरा उसको छोड़ दो, रिलैक्स करो, जैसे कि क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स करते हैं, एंड देन जस्ट डू दिस मूवमेंट व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज साइमल्टेनियसली। मैं नीचे मेरे हैंड मूवमेंट्स में अपने हाथ फ्री कर रहा हूँ, जिससे लिखते वक्त मुझे काम आ जाएगा। ये मत कीजिएगा, ये मत करो, डू दिस। और इससे आपका जो फ्लो है वो चला रहेगा, और आपका जो पेनिंग मूवमेंट है वो कम होगा, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी। जिसकी हैंडराइटिंग मेरी तरह है, बहुत बुरी है, उसको अभी चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि फर्स्ट इनिशियल पेज से लेके 12 पेजेस बोर्ड पेपर के पहले 12 पेजेस तक
avoid cancellation, avoid overwriting, avoid any mistakes as much as possible. क्योंकि पहले 10-12 पेजेस में एग्जामिनर असेसमेंट करता है, तो वो एज अ स्टूडेंट आप क्या हो इसको एनालाइज करता है। तो आप क्या स्टूडियस हो, हार्ड वर्किंग हो या लेथार्जिक हो, ये 3 क्राइटेरिया हम उसको देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, वर्नाक्युलर मीडियम या सेमी इंग्लिश। नो, we think about student as a studious, hardworking और lethargic। अभी एक की हैंडराइटिंग है, I can see the handwriting और immediately मैं बोलता हूँ ये इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है। Then 2 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बाद में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 बी लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 सी लिखा है। इस तरह से जो करता है उसको देख के पता चलता है लेथार्जिक है, इज नॉट इंटरेस्टेड टू, बस लिखा है बिकॉज उसको ओवर कॉन्फिडेंट है, तो उसको मालूम है वो पास होने वाला है। सच स्टूडेंट्स ब्रिंग्स इन, मैं एंगर तो नहीं बोलूंगा, बट यू गेट दैट थिंग एज एन एग्जामिनर, क्या है ये। और वही हम देखते हैं कि हैंडराइटिंग से पता चलता है उसका ही और शी इज नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, फिर भी वो हार्ड वर्क कर रहा है, लिख रहा है, सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर रहा है। ये हो गया हार्ड वर्किंग। और एक होता है स्टूडियस, जो आप पे कैटेगरी कहते हैं। मोमेंट वी लुक एट द आंसर्स, योर हैंडराइटिंग, योर प्रेजेंटेशन, और ये एकदम top notch students है। This is how we do that. So जो मेरी टाइप के स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़े हैंडराइटिंग में बुरे हैं, काफी एवरेज स्टूडेंट हैं, तो उनको याद रखना है कि फर्स्ट 12 पेजेस जस्ट गिव द बेस्ट। सो आपको एग्जामिनर के पास एक इंप्रेशन आ जाता है, दिस इज ही और शी इज गुड। अभी मैं बोलता हूँ एंड में एग्जाम सेंटर में कल जाओगे तब क्या करोगे, यानी अपने कॉलेज के सेंटर में क्लासरूम में जाओगे, उसके पहले टेक्स्ट बुक का इंडेक्स पेज देख लेना एंटर होने के पहले। तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आर.के. नारायण, पॉप एंड द एंथम ओ हेनरी, वॉयेजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस अच्युत बुलबुले, पोएट्री सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वॉल्ट विटमैन, इंडियन वीवर सर्जिन नायडू, इंच के ब्रॉक रॉबर्ट सली, नाम देख लेना। इन केस कहीं स्पेस मिला, इंटरप्रेटेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो उस राइटर का नाम लेके उसको अंडरलाइन करो। पोएट्री में, एप्रिसिएशन में तो लिखो ही लिखो और उसको अंडरलाइन करो, तो एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि पोएट के नाम याद रखने हैं, लेकिन इफ यू राइट इट गिव्स यू एज ओवर अदर्स कि यार इसने बहुत ही डीप स्टडी टॉपिक किया है, दैट विल बी एडवांटेज। अभी इंटरव्यू के 10 क्वेश्चंस कोई मुझे पूछ रहा है, you have ample of time to make your own questions। चलो कल एग्जाम है, आज मत करो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी को लो, उसकी तरह 3-4 और क्वेश्चंस, टेंटेटिव 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, all stories, great stories begin with failures and then the success. Is it the same is about you? How you spend leisure time, which is you rarely do get. देखो क्वेश्चन बना लिए है, उसमें कहाँ इतना सोचने का, 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। So just don't make all 10 questions, 5 बनाओ। 5 क्वेश्चन पेपर देख के जो क्वेश्चन है उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुंबई का डब्बे वाला, तो सर्टेन क्वेश्चन शुड ब्रिंग इन दैट मुंबई का डब्बे वाले का एलिमेंट ना। फॉर एग्जांपल दे आर अवॉर्डेड विद 6 सिग्मा, तो ये टेंटेटिव में कैसे बनाओगे, पर डब्बे वाले का क्वेश्चन देख के मैं बनाऊंगा दैट यू आर अवॉर्डेड विद 6 सिग्मा, सो टेल अस हाउ यू। ये ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअली उसको एक्सपर्टीज बेस्ड बोलूंगा। तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें क्रिकेटर का है, तो उस टॉपिक को लेके आप 5 क्वेश्चंस बनाओ, तो एग्जामिनर को अपने सारे 10 क्वेश्चंस ऐसे बहुत कॉम्पैक्ट नजर आएंगे, एंड दैट विल बी गिविंग यू गुड मार्क्स। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा, व्हेन यू फिनिश विथ योर एग्जाम्स, एग्जाम 10-12-15 मिनट का टाइम होना चाहिए आपके पास, ताकि आप फिर पेंसिल से वर्ड्स को अंडरलाइन करो। एक आंसर और 2 आंसर, मतलब दूसरे आंसर में गैप है तो उसको आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो ड्रॉ करो लाइन।
ईमेल लिखा है उसको बॉक्स बनाओ, अपील किया है तो उसको बॉक्स बनाओ, व्हाटएवर इज पॉसिबल। और कहीं आपको लगा कि यहाँ पे मैंने राइटर का नाम तभी याद नहीं आया, अभी याद आ गया, दिस पोएम इंच के प्रॉक का एप्रिसिएशन है और पोएट का नाम रॉबर्ट सदी है, तो वहां पे ऐड करना जो लाइन आपने लिखा नहीं है। तो दिस वंडरफुल पोएम इज रिटन बाय इंग्लिश पोएट ऑफ रोमांटिक एज रॉबर्ट सदी, ये ऐड कर देना। तभी ऐसा चीजें ऐड करो जो आपको स्केलिंग में काम आएगा। ऐसे ही ऐड करना है, इसके लिए ऐड मत करो, तो लेट इट बी। बाकी ऐसा यू अंडरलाइन द वर्ड्स, ड्रॉ लाइंस इफ पॉसिबल। और एज आई सेड, पहले 10-12 पेजेस पे आप काफी ध्यान से काम करो, ताकि एक बार एग्जामिनर में अपना इंप्रेशन क्रिएट हो गया, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी लॉजिकल। विदाउट इंप्रेशन, विदाउट आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट, नथिंग कैन वर्क। तो आपको इस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करो, फिर देखो मार्क्स थोड़े फ्लो इजी हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू से देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस, दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट नाउ। अभी आपको कुछ पूछना है तो यू आर फ्री। Sir, one thing I want to ask, I'm the teacher. I just want to ask one thing. In the grammar, will they get the option like MCQs? They get the 3-4 options and they have to choose. मैं बता रहा हूँ, in terms of grammar questions, everything will not come straight question or answer. Something will come as an activity as well. मतलब they will give you one grammar question with some multiple answers. We have to pick the right one. Total grammar में आपको बताऊं ना तो it is 8 marks. Don't think about much from today. If you are planning for tomorrow's exam, fair enough. Grammar is 8 marks. तो उसको आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के पहले 3 दिन पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, इफ यू आर नॉट दैट श्योर अबाउट इट। अगर आपका ग्रामर बहुत ही अच्छा है, बिकॉज योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड पेपर्स व्हाट यू हैव सॉल्व्ड सो फार बताता है कि आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, तो डू इट जस्ट फॉर अ डे और सो, बिकॉज 8 मार्क्स के लिए कितना आप ट्राई करोगे। मैंने बोला जैसे वर्कशीट फ्रेम करके राइट आंसर्स एंड गेट इट डन, मतलब as that simple as that. Okay, so now is there anything else? Because I have nothing left with me now. My everything what we call as the experience what I've gained in these years is all emptied out to you. So now बाकी तो कुछ अभी है नहीं, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत सी चीजें। The knowledge which you have given regarding writing skill, it was excellent. You know, like if they do something, whatever you have said, they would get excellent one, because even I was very much impressed with the way you have taught. You know, I'm so thankful and happy. Very nice. Thank you. It's all pleasure. Thank you. So, is it? Shall we quit here with bidding farewell and loads of blessings to everyone, and especially the kids who will be appearing for not just 12th exams, but throughout their life they'll be appearing for so many exams, which will be, some exams will be in form of writing, some will be in appearing, some will be in performing, but each and every exam I'm sure that you will be doing wonderful job and will bring a lot of recognition and achievements through you. Even the college, your alma mater will be same happy, and so even me at a point of time, because in a way also I'm also a part of your team, and so we wish you all the best. God bless and thank you. There's something from Dhruvi Kapalia. Thank you. It's all pleasure. Thank you. God bless everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for giving this. Actually, it's something to say right from my heart. Thank you for giving me the opportunity, because it was also a learning process for my own self as well. So once again, thank you, and I leave from here now. Wishing you all the best once again to each and everyone. Thank you. Thank you.